Hello students, welcome back to Chandrajit classes. As we have already started real number in our last video, in this video we will continue the remaining part of real number exercise number 1.1, that is question number 2, 3, 4 and 5. In our last video, in the first question of exercise 1.1, we have completed Euclid lemma division. There we understood HCF, how to find out HCF through Euclid lemma division. Now in the continuation of that part, we will do question number 2, 3, 4 and 5 in this video. So let's start with question number 2. Now here, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. Now how to solve this question? Just see, we know already Euclid lemma. What is that? Euclid's lemma that we have already discussed in our last video. Euclid lemma, the equation of Euclid lemma is A is equals to BQ plus R, and we know that R is greater than equal to 0 and less than B. This is the basic equation form of Euclid lemma, as we have already discussed this part in the last video. Well, here B is equals to 6. See in the question 6q, 6q, 6q. It is B. That means B is 6. And we can take A as any positive integer by ourselves. ठीक है, हम कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर ए को मान सकते हैं या ले सकते हैं, राइट? नाउ द थर्ड थिंग इज आर. ऑलरेडी वी हैव टेकन बी इक्वल टू 6, ए इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर. नाउ द थर्ड थिंग इज आर. नाउ आर वी कैन पुट 0, 1, 2, 3, 4 and 5 because see, the value of r is greater than equal to 0. It means 0 will be included. यानी कि 0 का इंक्लूड करेंगे, यानी 0 से स्टार्ट होगा और b से कम यानी 6 से कम होगा. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही 5 नंबर तो पॉसिबल केसेस बन सकते हैं आर के. सो दीज आर द पॉसिबल इंटीजर्स ऑफ आर. ना वन बाई वन हम लोग जो है आर की वैल्यू को पुट करेंगे और चेक करेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमें किस किस नंबर में मिलता है. जिस नंबर में हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा. नाउ फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, व्हेन वी पुट आर इक्वल टू 0, जब हमने आर को 0 लिया, पहली वैल्यू आर की 0 है ना, तो हमने आर को 0 लिया तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है a is equals to b. b is 6. 6q plus r is 0. So here 0 means it is a case of even number. Got it? 0 is a case of even number. अब अगर हम r को सपोज 1 मान लेते हैं, जैसा कि हमने नेक्स्ट माना है 0 के बाद 1, तो अगर r की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनता है? a is equals to 6q plus 1. now 1 is our odd number, तो सबको पता ही है जैसे कि हमने पहले बताया भी है. now take r equal to 2. अगर r की वैल्यू आप 2 लेते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाता है? a is equals to 6q plus 2 and 2 becomes again even. now take r equal to 3. अगर r की वैल्यू 3 है तो a is equals to 6q plus 3. 3 क्या होता है? odd. now the next one is r is equals to 4. अगर आप r की वैल्यू को 4 लेते हैं तो a is equals to 6q plus 4. 4 again even. and the last one what we have taken, r equal to 5. अगर r की वैल्यू 5 है तो a is equals to 6q plus 5 and 5 is an odd number. ये पांचों वैल्यूज आ गई.
1 2 3 4 5 एडिशन टू 0. ओके, सो 0 में 0, 1 में 1, 2 में 2 एंड सो ऑन. सो इट मीन्स ऑड फंक्शन या ऑड नंबर या पॉजिटिव ऑड नंबर आपको कहां मिल रहा है? एट r इक्वल टू सी 1 3 5 we have positive odd integers. So this is the answer of this question. You got it? Now come to the next question, that is question number 3. Now start with the third question. थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अब देखिए. एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एंड आगे लिखा हुआ है कितना? 32 मेंबर्स, राइट. दो नंबरों की बात हो रही है यहाँ पे, और लास्ट में बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमें फाइंड आउट करना है, यही है ना. तो इसमें हमारा कौन सा केस बनता है? ये एग्जैक्टली पहले क्वेश्चन की तरह जिसमें हमने HCF निकाला था उसके तरह ये क्वेश्चन बन जाता है. बिकॉज ये जो वर्ड है ना मैक्सिमम, इट मीन्स HCF, इट शोज HCF. व्हाट इट शोज? HCF. और HCF को हम कैसे निकालेंगे? जब दो नंबर दिए होंगे जिसमें से एक बड़ा और एक छोटा होगा, हम करेंगे यूक्लिड लेमा के प्रोसेसिंग से, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा के तरीके से करेंगे, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किए थे. ठीक है ना. आपने अगर अभी तक वो नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार अच्छे से चेक कर ले, सो दैट आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. नाउ स्टार्ट विथ 616 एंड 32. दीज आर द टू नंबर्स. अब इसमें सिंपल गेम है, 616 इज ग्रेटर देन 32, यही है. नाउ बाय यूक्लिड division we can say a is equals to b क्यू प्लस r. ये इसका इक्वेशन है जिसमें r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है एंड लेस देन b होता है. ये हमारा बेसिक इक्वेशन है जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन से जानते आ रहे हैं, या इंट्रोडक्शन पार्ट से हम लोग जानते आ रहे हैं. ठीक है. अब हम इसे क्या करेंगे? डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे. वो कैसे? सी 616 को हम लोग डिवाइड करेंगे 32 से. अब इसका प्रोसेसिंग मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा, आप देख सकते हैं. सबसे पहले इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 32 1 जा 32, तो हमारे पास सॉल्व हो के कितना आया? 29. ओके. नाउ ये 6 जो है आगे हमारे पास कैरी होगा, इट मीन्स 6 यहाँ पे आ जाएगा. नाउ इट बिकम्स 296. अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने क्या समझाया था पहले कि ऑलवेज जो आपके पास रिमाइंडर है ना, ये जो रिमाइंडर पार्ट है और ये जो क्वोशंट पार्ट है, ये दोनों ही आपके डिवाइजर से छोटे होने चाहिए. अगर छोटा है तो आप यूक्लिड लेमा का नॉर्मल डिवीजन मेथड फॉलो करेंगे, और अगर नहीं तो आप नॉर्मल डिवीजन मेथड को यहाँ पे फॉलो करेंगे. अब देखिए 296 जो है वो बड़ा होता है 32 से. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम लोग लेमा के तरीके से ना करके इस स्टेप में हम लोग नॉर्मल डिवीजन करेंगे. ठीक है. अब नॉर्मल डिवीजन करेंगे तो 32 कितना? 9 जा 32 9 जा कितना होता है? इट इज 288. अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास कितना आता है? ओनली 8. अब आप दोबारा से देखिए, ये देखिए रिमाइंडर 8 है और क्वोशंट 9 है. अब दोनों ही आपके जो है 32 से छोटे होते हैं, स्मॉलर है ना. तो यानी कि अब हम लेमा का डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे. उसमें अब आगे कैसे करते हैं हम लोग? अगेन डिवाइड करेंगे और डिविडेंड की जगह यही वाला डिवाइजर आ जाएगा, यानी डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड. ठीक है. कब? जब क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों ही स्मॉलर हो जाते हैं डिवाइजर से. ठीक है ना. 32 से स्मॉलर है ना 9 एंड 8, तो इसीलिए 32 अब जो है डिविडेंड बन गया. अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी 8 4 जा 32. तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया? 0. तो जब तक कि आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक आप इस डिवीजन प्रोसेस को चलाते रहेंगे. ओके. नाउ द रिमाइंडर इज 0.
तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या लिखा होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए हो जाता है आपके पास डिविडेंड वाला पार्ट यानी कि 32। तो हमने क्या लिख देना है यहाँ पे, ए के नीचे 32 इज इक्वल्स टू बी क्या है, बी होता है आपके पास डिवाइजर यानी कि 8, ठीक है। इनटू में क्यू कितना आएगा, क्वोशेंट 4, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर इज 0, ठीक है ना। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग लास्ट वाला जो बचता है ना, लास्ट वाला पार्ट जो बचता है, ये वाला पार्ट, हम इस वाले पार्ट से डिविडेंड जिसे हम ए मानते हैं, डिवाइजर जिसे हम बी मानते हैं, कोशेंट कोशेंट जिसे हम लोग यहां पे 4 मानेंगे, ठीक है, और रिमाइंडर जो कि यहां पे 0 आ चुका है। आगे बात समझ में, तो यहां पे पुटअप कर दिया। तो यहां पे ये जो बी वाला पार्ट है ना, लास्ट डिवाइजर जो था, यही हमारा एचसीएफ होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज कितना, 8। So this is our answer. Okay. Now we will move towards the fourth question. Now we will start our fourth question. अब fourth question क्या है देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटेजर। ध्यान रखिएगा स्क्वायर ऑफ बोला है, ठीक है, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटेजर m, राइट, ये क्वेश्चन है ना। तो इसे भी हम यूक्लिड लेमा का वही एक ही फॉर्मेट लगेगा, सेम टू सेम। कैसे आएगा देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास यूक्लिड लेमा का जो इक्वेशन होता है, यूक्लिड्स लेमा का जो इक्वेशन होगा वो क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे कि आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी होता है, यही होता है ना। यहां पे here we have b equal to what, b equal to we have 3, see b equal to है 3। now put a b any integer, I mean positive integer, ठीक है, any positive integer, ठीक है, a को हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं और b तो हमें ऑलरेडी दिया ही हुआ है 3, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, जैसे कि हमने पीछे भी सीखा था क्वेश्चन में। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर हमारे पास क्या क्या आ सकता है, 0, 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे आर क्या बोला हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। b कितना है, 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब r की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, यानी 3 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो 3 से छोटा तो 2 तक होता है ना, तो 0, 1, 2 ये 3 वैल्यूज आ जाती है। अब 1 बाई 1 जो है हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन में, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले व्हेन r इक्वल टू 0, तो इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, a इक्वल टू बी कितना है हमारे पास, 3q प्लस 0, यही आता है, गॉट इट। अच्छा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3q। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को क्या बोला था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था स्क्वायर ऑफ द, आई मीन स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटेजर। तो स्क्वायर बोला है ना, अब a एक इंटेजर है तो इसका स्क्वायर तो हमें करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हम दोनों और स्क्वायर को करेंगे, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसे ही फॉर्म होता है, जब हम एक साइड स्क्वायर करते हैं तो दूसरी साइड भी करना पड़ता है बैलेंसिंग के लिए, है ना। तो अगर a का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 3q का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तब स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल रहा है, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू
3q का स्क्वायर, हम ऐसा बोल सकते हैं इसे। अब ये जो 3q का स्क्वायर है, अगर मैं इसे पुट m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए m इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो फिर मेरे पास ये क्या हो जाता है, इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाता है, ये इस तरीके से आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरे पास आ जाएगा m की वैल्यू, m इज इक्वल्स टू 3, सॉरी, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m, ये आ जाएगा। तो ये देखिए पहला वाला तो प्रूव हो गया हमारे पास, राइट। अब ये तो हो गया हमारे पास पहला वाला प्रूव, ठीक है ना, दैट इज a स्क्वायर इक्वल टू 3m। ओके, अब अगर हम r को, इफ r इज इक्वल्स टू 1 ले, पिछली बार 0 लिया था, अब की 1 लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अगेन स्क्वायरिंग करना पड़ेगा हमें, तो जब हम इसे स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। अब अगर हम स्क्वायर को ओपन करते हैं तो इट कम्स a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें फॉर्मूला क्या का लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है आपके पास कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी का प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q प्लस 1, यही आती है वैल्यू मेरे पास। अब इन दोनों में से अगर मैं कुछ कॉमन ले लूं, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचता है, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 अलग से, ठीक है, यही बचेगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने पे हमें यही मिलना चाहिए। देखो 3 3 जा 9q स्क्वायर ये रहा, प्लस 3 2 जा 6q ये रहा, ठीक है ना, तो हमने कॉमन ले लिया 3। अब अगर मैं इस पोर्शन को पुट कर लेता हूं m के बराबर, ठीक है, अगर मैं इसे m पुट कर लेता हूं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3m प्लस 1, ये आ जाता है हमारे पास। अब देखो ये है सेकंड वाला, तो हो गया प्रूफ सेकंड वाला भी। अब क्योंकि हमारे पास एक और वैल्यू है, उसे भी हमें सॉल्व करके दिखाना है। नाउ इफ r इक्वल्स टू, पीछे 0 लिया था देन 1 लिया था, अब कौन सा वैल्यू बचा हुआ है, 2, तो टेक 2 एज r, तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r बोले तो 2, ये हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, सेम उसी तरीके से स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, राइट। अच्छा, हमें तो b की वैल्यू पता है, तो b की वैल्यू पता है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बी कितना है 3 है, तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि मैं b की वैल्यू को ऊपर भी पॉइंट आउट कर सकता था, ठीक है ना, मैं स्टार्टिंग में भी पॉइंट आउट कर सकता था, यहीं पे मैं b की वैल्यू को लगा सकता था, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, एक ही बात है। अब जो है ए स्क्वायर इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12q प्लस 2 2 जा 4, आ गया इतना। अब अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं, ए स्क्वायर इक्वल टू, यहां जरा ध्यान से समझिएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q
प्लस 3 प्लस 1, यानी कि इस वाले 4 को मैंने ब्रेकअप कर लिया 3 प्लस 1 में। ठीक है, ऐसा क्यों किया? देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं इतने वैल्यू से अगर 3 कॉमन ले लूँ, तो ये मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर क्या आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 और बाहर आएगा मेरे पास 1, यही आ जाएगा। ठीक है ना। अब इतने पार्ट को अगर मैं m पुट कर लूं तो फिर मेरे पास क्या आता है। अब मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूं जिससे कि मैं आगे का पार्ट बता सकूं, आप लोग इतना नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से इसे रब कर देता हूं थोड़ा सा आगे बताने के लिए, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। ओके, ये मैंने रब कर दिया यहां से इतना पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ओके, अब आगे कैसे करेंगे हम इसे? आगे करेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 3। अब जैसा कि मैंने इसे बोला था कि इस वाले वैल्यू को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ एक बारी, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, यही था ना लिखा हुआ, प्लस 1 अलग से था। ठीक है, अब अगर इस वैल्यू को मैं, इतने वैल्यू को मैं पुट दिस इक्वल टू m, तो अगर मैं इसे m मान लेता हूं तो मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। अब देखिए यही वाली बात जो है क्वेश्चन में बताया गया था, क्वेश्चन में यही तो बताया गया था ना 3m प्लस 1। तो अभी हमने क्या किया, फर्स्ट वाले से यानी कि r इक्वल टू 0 से हमने 3m को प्रूव कर दिया, और r इक्वल टू 1 एंड 2 दोनों में ही हमने 3m प्लस 1 को भी शो कर दिया जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है। गॉट इट? ये है आपके पास r इक्वल टू 2 से, और ये है आपके पास r इक्वल टू 1 से। ठीक है, और ये है आपके पास r इक्वल टू 0 से। तो तीनों से ही हमने ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को, जिसे कि हम m कह रहे हैं जो कि एक इंटीजर है, हमने सॉल्व करके दिखा दिया। गॉट इट? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लेते हैं, जो कि एग्जैक्टली 4th के तरीके से ही होगा। इसमें भी यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही लेना है, जिसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, स्क्वायर और क्यूब का। लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर था, इस क्वेश्चन में क्यूब बोला हुआ है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न सेम टू सेम है। सो लेट्स डू बाय यूक्लिड लेमा। नाउ यूक्लिड्स लेमा का इक्वेशन क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे r क्या है, r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन b होता है। इतनी बात तो आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हेयर b जो है, b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9, बट वी विल टेक 3 बिकॉज 9 से बहुत बड़ा हो जाता है, और वैसे भी 3 जो है 9 का फैक्टर है, और 3 से सारे के सारे प्रूफ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एंड पुट और लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, a को आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें, और r के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे r जो है उसके पॉसिबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1 और 2। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए r जो है वो 0 और 0 के आगे बढ़ेगा, लेकिन b से छोटा होगा, यानी r जो है 0 से स्टार्ट होगा और b से छोटा होगा। b यहाँ पे है 3, इट मीन्स r की वैल्यू हो जाती है 0, 1 और 2। तो ये सारे हमारे जो है वो पॉसिबल वैल्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r हो जाते हैं। ठीक, अब हम 1 बाई 1 r की वैल्यूज को पुटअप करेंगे इक्वेशन में और क्वेश्चन को प्रूव कर देंगे। राइट, अगर हम सबसे पहले इफ r इक्वल टू, हम सबसे पहले लेते हैं 0, देन इक्वेशन में क्या आता है, देखिए इक्वेशन है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी कितना है 3, इट मीन्स 3q प्लस आर हो गया 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल टू 3q आ गया आपके पास। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, क्यूबिंग, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बोला था स्क्वायरिंग, तो इसमें बोला है क्यूबिंग, तो आप कर दीजिए क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपके पास a का क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाता है a क्यूब इक्वल टू 27q की पावर 3। अब बात को समझ लीजिए, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, मैं सबको कह रहा हूँ स्क्वायर्स 30 तक, क्यूब्स 10 तक कम से कम लर्न होने चाहिए किसी क्वेश्चन को इजी तरीके से करने के लिए। आज ही से शुरू कर दें आप लोग ये काम करना। नाउ आगे a क्यूब इक्वल टू, इसे मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ, 9 इंटू 3 27 होता है, साथ में q की पावर 3। अब इस q की पावर 3 को अगर मैं इक्वल टू m पुट कर लूँ, अगर मैं इसे m पुट कर लूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, ये a की पावर 3 इज इक्वल्स टू 9m। बात समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं आगे, जैसा कि यहाँ पे हम लोग एक लाइन डाल लेते हैं, इजी हो जाएगा समझना। अब आगे हम क्या करते हैं, a क्यूब इक्वल टू इट कम्स 9m। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था 9m प्रूव करना है, और a एक पॉजिटिव रियल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना, तो a का क्यूब इज इक्वल टू 9m, तो पहला तो प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इफ r इक्वल टू 1, अगर आप r को 1 लेते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है a इक्वल टू बी क्यूब, बी हो गया 3q प्लस r हो गया 1। ठीक है, अब सेम इसमें भी क्यूबिंग करेंगे। जब आप क्यूबिंग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसे अगर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू, अब देखिए यहाँ है a प्लस बी होल क्यूब। आप सबको फॉर्मूलाज यानी बेसिक फॉर्मूलाज तो लर्न करने ही पड़ेंगे, जिसमें से एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब का। अब ये क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू, अब 3q का क्यूब करने पे हमें कितना मिलता है, 27q की पावर 3 प्लस 1 का क्यूब होता है 1, प्लस इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 3 जा 9 होता है और 9 3 जा 27, यानी ये हो जाता है 27q का स्क्वायर प्लस, अब इसे करेंगे तो देखिए 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, यानी 9 का क्यूब। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर ले तो अरेंज करने पे इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, 27q की पावर 3 प्लस 27q की पावर 2 प्लस 9q प्लस 1 को थोड़ा सेपरेट वे से लिखते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, a की पावर 3 इक्वल्स टू, इतने पार्ट से हम लोग 9 को कॉमन आउट ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, 3q की पावर 3 प्लस 3q की पावर 2 प्लस q, इतना आ गया प्लस 1। अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऊपर वाली चीज आनी चाहिए जैसा कि आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को 3q की पावर 3 प्लस 3q की पावर 2 प्लस q को अगर मैं अपने आप से इक्वल टू m पुट कर लूँ तो फिर मेरे पास क्या आ जाता है, a की पावर 3 इक्वल टू 9m प्लस 1। इसी को मैं आगे इस तरीके से लिखता हूं, देखिए एक लाइन बना देते हैं इस तरीके से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, अब नेक्स्ट a की पावर 3 इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1। अब देखिए ये सेकंड वाला प्रूव हो गया कंप्लीट, यहाँ लिखा हुआ ना 9m प्लस 1, और a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 9m प्लस 1, ये सेकंड वाला प्रूव हो गया। अब चलते हैं थर्ड वाले की ओर, जिसके लिए हमें इफ r इक्वल टू क्या पुट करना है, 2। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू बी क्यू, अब b कितना है आपके पास 3, दैट इज 3q प्लस r हो गया 2। नाउ सेम थिंग इसमें भी क्यूबिंग करना पड़ेगा आपको। जब आप इसको क्यूबिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 की पावर होल क्यूब। सेम इसमें भी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पुटअप होगा, तो a क्यूब इक्वल टू सेम फॉर्मूला a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3 इंटू a² इंटू बी
ठीक है, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। अब इसे अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास आता है 3 की पावर 3 मीन्स 27 क्यू की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 मीन्स 8 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27 और 27 2 ज़ा 54 क्यू की पावर 2 प्लस आपके पास आगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36 क्यू। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे लिखेंगे क्यू की पावर 3 इक्वल टू, इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 27 क्यू की पावर 3 प्लस 54 क्यू की पावर 2 प्लस 36 क्यू प्लस 8 को अलग से लिख लिया। अब यहाँ पे हम ए क्यूब इक्वल टू क्या करेंगे, इतने पोर्शन से हम लोग जो है 9 को कॉमन ले लेंगे, तो 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाता है अंदर 3 क्यू की पावर 3, ठीक है, प्लस 6 क्यू की पावर 2 प्लस 4 क्यू प्लस 8 अलग से। अब इतने पार्ट को हम अगर अपने आप से इक्वल टू एम पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है वेट, हमें मिल जाता है, एक मिनट, हाँ, हमें पता चलता है ए की पावर 3 इज इक्वल्स टू 9 इंटू एम प्लस 8। इतना आ गया समझ में। अब इसका मतलब क्या है, ए जो है हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटेजर, और ये जो है हमें प्रूव करना था, ये देखिए थर्ड पार्ट हो गया 9m प्लस 8, तो इसका मतलब ए की पावर 3 इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8, ये तीसरा वाला प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तीनों ही पार्ट हमने प्रूव करके दिखा दिए। पहले पार्ट में हमने आर को लिया था 0 यहाँ पे, उसके बाद हमने आर को लिया था 1 यहाँ पे, और उसके बाद आर को लिया था 2। ऐसा पुट करने से हमारे पास तीनों प्रूफ कंप्लीट हो गए, एक तो ये, एक ये और एक ये, जो कि दिए गए क्वेश्चन में था, राइट। If anybody have any query, then comment it in the comment box. इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट है, मैंने कंप्लीट करवा दिया। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। ओके, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।